Welcome everybody. In the previous slide we had an insight on the initial introduction of cycloalkanes. Now we will be discussing in detail about various methods of preparation of cycloalkanes. As in my lecture of introduction of cycloalkanes, we have made it very clear to all my students. I have made it very clear to all my students that cycloalkanes, these are alkanes in a cyclic form. So, it has been very clear that preparation of cycloalkanes is also done generally by aliphatic compounds because they are saturated in nature. So, while preparing them you will have to use cycloalkane. It is done basically by aliphatic compounds or done as aliphatic compounds are synthesized. Synthesis of cycloalkanes or methods of preparation of cycloalkanes comprise of two steps. First step involves the cyclization process. This is conversion of open chain compounds to cyclic compounds. We have seen in our previous slide. For example, if I take the example of pentane, CH3, CH2, 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 CH3. What is this? This is pentane, and pentane is being converted to cyclopentane. This means that pentane is being cyclized in this form. So, this will become cyclopentane. So, first step involves the conversion of an open chain compound to a cyclo compound, and the next step is conversion of cyclic compound to the required derivative. Many times there is some or the other substitution on the cyclic ring. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अकेला cyclic ring है, always अकेला cyclic ring भी हो सकता है, अकेला cyclopropane हो सकता है, अकेला cyclobutane हो सकता है, लेकिन many times there are substitutions present on cyclic compounds. So, the second step involves the conversion of the cyclic compound in the required derivative. So, here we will look for some methods through which this can be done. The first method I am discussing here is preparation of cycloalkanes from terminal dihalides. Before understanding the methods of preparation, first I will like to discuss what are terminal dihalides. I will again dissect the word terminal, अंत में हो जो, and dihalide, दो halide molecules. Look at the precursor of the synthesis, Br. अगर मैं इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखें तो ये 1, 2, 3 कार्बन की चेन है. 3 कार्बन के चेन के टर्मिनल कार्बन्स पर दो हैलाइड मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो दो हैलाइड मॉलिक्यूल टर्मिनल्स पे जुड़े हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड हो गया 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है, एक एग्जांपल है टर्मिनल डाइहैलाइड का, राइट. So, terminal dihalides are widely used for the preparation of cycloalkanes. This method is also known as internal Woods reaction. इस method का internal Woods reaction भी नाम है. कैसे आप terminal dihalides से cycloalkanes को synthesize करेंगे? Through their reaction with sodium or zinc. Through their reaction with sodium or zinc. Reaction को देखिए ज़रा ध्यान से. This is a terminal dihalide. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इस प्रोपेन रिंग के टर्मिनल्स पे है. When this is made to react with sodium, what comes out? NaBr. दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स थे, दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो क्या निकल के आया तुम्हारा? 2 NaBr. Now, when these two carbon lose the bromine, they cyclize themselves to stabilize or form a stable compound. तो क्या बन गया यहाँ? सोडियम से रिएक्शन करके 2 NaBr आपका बाहर आ जाता है. You will lead to the formation of a cyclic propane ring, that is cyclopropane. Similarly, if we see the next example also,
terminal dihalide again, but this time this is on 1, 2, 3, 4 a butane. So 1,4-dibromobutane. 1,4-dibromobutane को किससे रिएक्ट करवाया आपने? जिंक से रिएक्ट करवाया. अगेन द सेम रिएक्शन हैपन्स. 2 जिंक कंपाउंड्स में यहाँ पे ले लूँगी, तो यहाँ सॉरी यहाँ 2 जिंक कंपाउंड्स ने लेके हम 1 जिंक कंपाउंड से ही लेंगे, क्योंकि जिंक की यहाँ वैलेंसी 2 होती है. तो क्या होगा? Zn Br के साथ रिएक्ट करेगा, कंपाउंड आपका मिल जाएगा ZnBr2. और अगेन अपने टूटे हुए बॉन्ड्स को सैचुरेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कंपाउंड को कार्बन बॉन्ड बनाएगा और यू विल लीड टू cyclobutane. So in this manner, terminal dihalides when reacted with sodium or zinc lead to the formation of cyclobutane. This is also known as internal Woods reaction. Let's move to the second methods of preparation. The second methods of preparation is Ruzicka method. What is this? This is method of preparation of cycloalkanes by dicarboxylic acid. Again, first understand the precursor. Dicarboxylic acid मतलब 2 COH ग्रुप्स हैं, डाई मतलब 2, कार्बोक्साइलिक एसिड मतलब COOH फंक्शनल ग्रुप कंटेन्ड कंपाउंड्स. सो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये कैल्शियम के साथ सॉल्ट फॉर्म किए हुए हैं. तो अब यहाँ पे आपका जो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस क्या हुआ? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. और एग्जांपल हमने इस केस में एग्जांपल किसका लिया है? कैल्शियम एडिपेट. एडिपिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ब्यूटेन. एडिपिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ब्यूटेन. तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड हो जाएगा कैल्शियम एडिपेट. कैल्शियम एडिपेट को जब मैं हीट करती हूँ, कैल्शियम एडिपेट की जब मैंने हीट करी तो यहाँ पर क्या हुआ? डीकार्बोक्साइलेशन हुआ. डीकार्बोक्साइलेशन मतलब डी मतलब निकलना, निकालना. कार्बोक्साइलेशन, कार्बोक्साइलेशन प्रोसेस इज बेसिकली एडिशन ऑफ COH ग्रुप. डीकार्बोक्साइलेशन इज रिमूवल ऑफ COH ग्रुप. तो यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक, कैल्शियम एडिपेट को, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड या कैल्शियम एडिपेट को हीट करते हैं तो एक CO2 निकल जाता है, ठीक, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता है, बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3. नाउ व्हाट हैपेंस? क्योंकि ये निकल गया है, ये जो कार्बन है वो इससे बॉन्ड बना लेगा. यू विल लीड ऑन टू द कंपाउंड साइक्लोपेंटेनोन. लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर. कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाने से ये जो रिंग है वो क्लोज हो जाएगी. अभी स्टिल यू हैव दिस C डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट, स्टिल यू आर हैविंग दिस C डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट. तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपका कैल्शियम एडिपेट को हीट करने से मिला, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकला है, बन गया साइक्लोपेंटेनोन. हाउ इज दिस साइक्लोपेंटेनोन? भाई 5 रिंग का स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 कार्बन की सैचुरेटेड रिंग और कार्बन नंबर 1 पर C डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेनोन. ठीक, इस कीटोन को जब आप क्लेमेंसेंस रिडक्शन करते हैं, दैट इज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और Hg and HCl, right? Clemenson's reduction. Reduction is, what do you understand by reduction? Reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen. This is what is reduction is. ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा. एक सीरीज है. क्या सीरीज है? Carboxylic acids are reduced to aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are reduced to alcohols. Alcohols are finally reduced to एल्केन्स. तो बिल्कुल वही सीरीज यहाँ पर भी लग जाएगा. बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स में वी आर नॉट मॉड्यूलेटिंग देम, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्हेन साइक्लोपेंटेनोन C डबल बॉन्ड हो, कीटोन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ Zn and Hg, cyclopentane, this carbon is finally reduced to CO2, leading to the formation of cyclopentane. So in this slide, in the Ruzicka method, what did you do?
you in the there is two step reaction. First step, you decarboxylated the calcium adipate molecule. How did you decarboxylate? By heating it. Calcium carbonate निकल गया. Decarboxylation was done in the form of by the removal of calcium carbonate. Calcium carbonate आपका यहाँ से निकल गया. क्या बन गया? साइक्लोपेंटेनोन. अब साइक्लोपेंटेनोन बनते ही यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होना है. We very well know ketones are reduced to alcohols, alcohols are finally reduced to alkanes. So अगर आपने strong reducing agent यूज किया है, जैसे यहाँ ZnHg और HCl है, Clemmensen reduction है, तो what will happen? This C double bond O will directly reduce to alkane. Hence you will lead to the formation of a cycloalkane, that is cyclopentane. Is it clear? Is it clear? Next one more example I am discussing it. Here in place of calcium adipate we have used barium adipate. This is dicarboxylic acid salt with barium. Similar reaction will take place when you are going to heat it. Decarboxylation occurs in the form of barium carbonate, right? Decarboxylation will occur in the form of barium carbonate. बेरियम कार्बोनेट निकल गया, बेरियम निकला, इसके साथ CO3, this will come out. Again cyclization occurs leading to the formation of cyclopentanone again here, right? Or when cyclopentanone undergoes Clemmensen's reduction, ZnHg या and HCl के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया है, तो cyclopentanone will finally reduce on to cyclopentane. So with these two examples we understand how in the first step a dicarboxylic acid is decarboxylated to a ketone, and how in the second step a ketone is finally reduced onto a cycloalkane, right? Now look at the third method of preparation. Third method of preparation is from esters of dicarboxylic acid. In the previous slide we have shown the method in which we have synthesized from dicarboxylic acid, but the next method named as Dickman's method, it is from esters of dicarboxylic acid. Here you can take diesters of whether adipic acid also, pymalic acid also, they undergo cyclization in the presence of sodium, and this leads to intermolecular acetoester condensation. I will make it very clear when I will discuss these steps in the reaction. So here to introduce the method I am telling that diesters undergo cyclization with reaction with sodium, and how the cyclization takes place? Due to intermolecular acetoacetic ester condensation. First step, a beta keto ester is formed, and in the second step cyclic ketones are finally reduced to alkanes. So please have a look on this method, it will make the reaction very clear. Here the precursor, first let us understand the precursor, diethyl adipate. This, if it was H here and H here, it would be diethyl adipic acid, right? Sorry, it would be adipic acid, but this is ester, and ester of adipic acid with what? Ethanol. So कंपाउंड क्या बन गया तुम्हारा? एडिपिक एसिड अब ईस्टर में कन्वर्ट हुआ इथेनॉल के साथ, तो क्या बन गया है? डाइएथाइल एडिपेट. ये दोनों H हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, ये जो दोनों H हैं ये रिमूव हो गया H, ये वाला H रिमूव हो गया, और आपको मिल गया डाइएथाइल एडिपेट. डाइएथाइल ईस्टर एडिपिक, डाइएथाइल एडिपेट एक ईस्टर है एडिपिक एसिड का. इसको जब आपने सोडियम से रिएक्शन करवाया तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सोडियम के साथ साइक्लाइजेशन हुआ है. साइक्लाइजेशन कैसे? इंट्रामोलिकुलर एसिटोएसिटिक ईस्टर कंडेंसेशन. अंडरस्टैंड दिस. रिमूवल ऑफ C2H5OH मॉलिक्यूल. हाउ इज इट रिमूव्ड? सोडियम के साथ C2H5OH. H it can get from the medium,
C2H5ONA के रूप में भी ये निकल सकता है। तो यहाँ पर C2H5O मॉलिक्यूल जब निकलता है, सो माइंड इट, यू विल फॉर्म अ बीटा कीटो ईस्टर। ये बीटा कीटो ईस्टर कैसे बना, अब ये समझते हैं। बीटा की, व्हाई इज इट बीटा कीटो ईस्टर? लुक, इफ C2H5 वॉज नॉट हेयर, यहाँ H होता तो ये क्या होता, ये एक एसिड होता। इस एसिड को C2H5OH से रिएक्शन हुआ था, इसीलिए तो ये ईस्टर बना था। यहाँ पर ये डाई ईस्टर था, अब एक C2H5OH मॉलिक्यूल निकल गया है तो ये सिर्फ ईस्टर रह गया। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है उसे हम कहते हैं अल्फा। तो कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज बीटा, कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज बीटा, hence the name comes beta keto ester। why? because बीटा कार्बन पे एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ जब डाई एथाइल एडिपेट की सोडियम से रिएक्शन करते हैं, एक C2H5OH मॉलिक्यूल निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ C2H5ONA। तो इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूल के इंट्रामोलिकुलर, बिकॉज इनसाइड द मॉलिक्यूल देयर इज अ साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन होने से आपको बीटा कीटो ईस्टर मिल जाता है। दो ईस्टर मॉलिक्यूल से एक बन गए क्योंकि C2H5OH निकल गया था, और C डबल बॉन्ड क्योंकि बीटा पोजीशन पे इट इज बीटा कीटो ईस्टर। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, व्हाट इन्वॉल्व्स, इट इज हाइड्रोलिसिस। हाउ आर यू हाइड्रोलाइजिंग इट? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous HCl। व्हाट हैपेंस, aqueous HCl के प्रेजेंस में ये जो ईस्टर लिंकेज है ये भी ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे C2H5OH के साथ COO C2H5 बना था, अब यहाँ पे ये इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर OH हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous HCl, C2H5OH मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये रह जाएगा अकेले आपके पास COOH। नाउ फ्रॉम बीटा कीटो ईस्टर द कंपाउंड बिकम्स बीटा कीटो एसिड। वही एक ही बात आप यहाँ पे समझेंगे, क्या एसिड क्योंकि मेन फैमिली है, एसिड मेन फैमिली होने के कारण ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हो जाएगा तुम्हारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के एडजेसेंट हो गया तुम्हारा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, इसलिए ये कंपाउंड बन गया आपका बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड पर नेक्स्ट स्टेप में होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ COH ग्रुप, एंड विच CO2 ग्रुप, which COH removes in the form of CO2? This one. Now again cyclopentane। मतलब पिछले मेथड में जहां हम वन स्टेप में आके आप साइक्लोपेंटेनोन पे आ गए थे, यहाँ पर यू विल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स टू कम ऑन टू साइक्लोपेंटेनोन। फाइनली साइक्लोपेंटेनोन पे आके सेम रिडक्शन in the presence of Zn and HCl, and this C double bond O will get reduced to cyclopentane. So this method, first if you have a detailed look in this, डाइएथाइल ईस्टर लेके आपने उसको इनिशियल ब्रीफली अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं, डाइएथाइल ईस्टर से आपने ईस्टर बनाया, ईस्टर से आपने एसिड बनाया, एसिड को आपने डीकार्बोक्सिलेट किया, डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2, और फिर कीटोन बनने से कीटोन बना जिसको आपने रिड्यूस कर दिया। यू विल फाइनली रीच टू योर एंड प्रोडक्ट दैट इज साइक्लोएल्कीन। Now let us discuss the fourth method of preparation of cycloalkane. This is the very simple method of preparation. In this, simply what you have to do is aromatic cyclic structures को saturate करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो there is a very close resemblance between benzene and cyclohexane. This need not be in their chemical physical properties, but if these double bonds are saturated here, this C6H5, what is benzene? Benzene is C6H6, इसको आप सैचुरेट करेंगे। जनरल फॉर्मूला आपको साइक्लोएल्केन्स का पता है, CnH2n। CnH2n में
दिस फॉर्मूला विल कम C6H12. मतलब बेंजीन में 6 कार्बन और ऐड किए जाएं, 6 कार्बन और ऐड किए जाएं तो वो साइक्लोहेक्सेन बनाएगा. 6 कार्बन कैसे ऐड किए जा रहे हैं? 6 कार्बन ऐड किए जाने के लिए भाई यू नो दिस वेरी वेल, टू सैचुरेट अ सिंगल डबल बॉन्ड यू नीड 2 हाइड्रोजन्स, राइट? तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड हैं? 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. हेंस यू विल नीड 6 हाइड्रोजन एटम्स. H2, 3 molecules of H2 will give you 6 हाइड्रोजन एटम्स. 6 हाइड्रोजन एटम्स ये डबल बॉन्ड्स को यहाँ पे सैचुरेट करते हैं. डबल बॉन्ड सैचुरेट होंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आप इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. निकल इज अ कैटालिस्ट. व्हाई निकल इज यूज्ड? निकल इज यूज्ड बिकॉज निकल के सरफेस पर दीज मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब and they come in close intimacy so that hydrogen molecules are easily able to attack on these double bonds and add to it, right? तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड्स पे ऐड होंगे, हर डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा आपका कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड. इसमें हमने क्या देखा कि जो स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस हमने देखी, देखो बेंजीन एंड साइक्लोएल्केन दे आर एज डिफरेंट एज हेक्सेन and benzene and cyclohexane are as different as hexane and benzene because cyclohexane resemble more to hexane in their some of their physical and chemical properties, लेकिन cyclohexane will not resemble to benzene only because of the presence of resonance stabilization in benzene. तो यहाँ पर आपको बेंजीन को सैचुरेट करना पड़ेगा, ये जो पाई बॉन्डिंग है इसको रिमूव करना पड़ेगा, देन यू विल लीड ऑन टू द मॉलिक्यूल cyclohexane, right? So this was the fourth method for preparation of cycloalkanes. It is by aromatization of hydrocarbons. ठीक, you can take here any example can be taken. You can also take here a 5-membered example. For example, any 5-membered ring, it has unsaturation present here. Now you will add hydrogen in the presence of nickel. How many hydrogen atoms do you require? एक डबल बॉन्ड के लिए तुम्हें 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब 2H2 होगा. यू विल लीड टू साइक्लोपेंटेन. तो इट इज़ नॉट विद द केस ऑफ ओनली बेंजीन. अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अदर नंबर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर आप सैचुरेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं by a hydrogenation or hydrogenation in the presence of nickel, you will lead to your cycloalkane. Now comes the next method is, it is Simon-Smith reaction. What is Simon-Smith reaction? Simon-Smith reaction is preparation of cycloalkanes from alkenes, right? Here the important point is alkene is made to react with diiodomethane. Diiodomethane is CH2I2. Look in the reaction here. ये एल्कीन है, 1 2 3, 3 कार्बन, प्रोपेन, 1 पे डबल बॉन्ड तो प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन. जब प्रोपीन की रिएक्शन CH2I2 से कराई तो क्या हुआ? जिंक कॉपर कैटालिस्ट, ईथर सॉल्वेंट लिया गया है, दिस CH2 adds on and a cyclic propane ring is formed. Mind it, this method is only for the preparation of cyclopropane derivative. यहाँ पर क्या हुआ? प्रोपीन रिंग पे यहाँ डबल बॉन्ड पर आपने CH2 ऐड कर दिया, CH2 ऐड किया तो ये डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर CH2 ऐड करने से ये रिंग साइक्लाइज हो गए. ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल में सेकेंड में आपने ब्यूटीन में किया, डबल बॉन्ड पे आपने CH2I2 का एडिशन किया, ये ऐड होके साइक्लोप्रोपेन. सो माइंड इट, from alkenes, that is Simon-Smith reaction is only for the formation of cyclopropane derivatives. Now we come on to the last method of preparation. The last method I am discussing here, this is Diels-Alder reaction, right? Diels-Alder reaction, I should say, I have discussed it in last, but it is one of the most important method of preparation of cyclic compounds. It is one of the most important method of preparation of 6-membered, I should say,
राइट। 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड्स को अगर मैं बनाने चल, जैसे मैं हमने क्या देखा, साइमन स्मिथ रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन्स, राइट। लुक एट द रिएक्शन, डाइईन्स, 2 डबल बॉन्ड। पिछले स्लाइड्स में हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, 2 ईस्टर्स देखे, अब हम देख रहे हैं डाइईन। 1,3 ब्यूटाडाइन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ब्यूटाडाइन। डाइन कैसे, 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3,4 के बीच में डबल बॉन्ड। क्योंकि ये ब्यूटेन रिंग पे है तो कंपाउंड आपका क्या बन गया, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन इज मेड टू रिएक्ट विद अ डाइइनोफाइल। Now what is a dienophile? What is a dienophile? Is it some class of chemical compound? No, it is not a class. Dienophile वो सभी compounds होते हैं जो डाइईन से react करते हैं। Dienophile you can understand in such a way, dienophiles are compounds which react to a diene. तो यहाँ पर this is a dienophile because it is reacting to a diene, and which diene? 1,3 butadiene. तो 1,3 ब्यूटाडाइन को जब डाइइनोफाइल के साथ हीट किया जाता है तो व्हाट हैपेंस, ये साइक्लाइज होता है। अब अगर मैं इसको रिवर्ट करूंगी तो ये इस तरह से है, इस तरह से है। हीट करने से 2 बातें हुई, पहला साइक्लाइजेशन हुआ और दूसरा ये जो एडिशनल डबल बॉन्ड्स थे ये बाहर सब्स्टिट्यूशन में आ गए यहाँ पर। क्लियर है? या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ ये जो एडिशनल, ये जो डबल बॉन्ड्स थे ये इधर मूव करें, तो इतने स्ट्रक्चर के बाद ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ जाते हैं और ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है अगर मैं इसको एज सच यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो ब्यूटाडाइन और डाइइनोफाइल ने रिएक्ट करके एक साइक्लिक एल्कीन बनाया। क्यों? क्योंकि अभी एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड लेफ्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे सैचुरेट नहीं हुआ है। तो ब्यूटाडाइन और डाइइनोफाइल के रिएक्शन से साइक्लिक एल्कीन बना और अब ये जो साइक्लिक एल्कीन है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, डबल बॉन्ड को आपको सैचुरेट करना पड़ेगा और ये जो डबल बॉन्ड का सैचुरेशन है वो कैसे हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड का सैचुरेशन है हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल के प्रेजेंस में जब आपने इसको हाइड्रोजिनेट किया तो ये 6 मेंबर्ड कार्बन की जो चेन थी वो सैचुरेट हो गई एंड यू विल ऑब्टेन योर साइक्लोहेक्सेन। एंड आई शुड बी वेरी स्पेसिफिक हियर, अगर आप डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यू विल ऑब्टेन अ साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो व्हाट इज द डायल्स-एल्डर रिएक्शन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन सीरीज। एक ब्यूटाडाइन लिया है, कोई भी डाइन लिया है, 2 डबल बॉन्ड्स, डाइइनोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया और उसको साइक्लिक एल्कीन्स बनाने के बाद साइक्लिक एल्कीन्स बना इस रिएक्शन से और इस साइक्लिक एल्कीन्स को आपने रिड्यूस करवा दिया। तो हेंस मैं यहाँ पे अगर बैक जाके रिवर्स टेलरिंग करके अगर मैं अपनी स्लाइड्स को कंक्लूड करूँ तो हमने 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं साइक्लोएल्केन्स के। डायल्स-एल्डर रिएक्शन फॉर साइक्लोहेक्सेन्स, Simon-Smith reaction for cyclopropanes, aromatic hydrocarbons, hydrogenation of aromatic hydrocarbons from esters of dicarboxylic acids, from dicarboxylic acid, that is Ruzicka method, and the first method was from terminal dihalides. So in this manner, in this presentation I have discussed all the possible methods of preparation of cycloalkenes.